Hello everyone, welcome back to Learn Then Code. And this is the third video of this series of learning data structures and algorithm. And today we are going to learn about arrays and STLs. So STL is a standard template library. So to understand STL, first we have to understand about what are templates. So let's have a look on it, why we use templates and what are they. So before moving on, what are templates? Let's have a look on a use case. Let's say I give you a problem. You have to create a function to add two integers. Okay, now how will you do it? First, you will have a return type. Then you will name the function. Then you will pass the arguments int a and b, and you will simply return a plus b, right? Very simple example. Now, let's say I want to give you another problem. Create a function to add to float, let's say. Now you will create another function with a type of float, right? Sum float a, float b, and then you will return a plus b. Right now, if I'll give you another example where you have to create a sum function for type double. Now you will rewrite this code again with same function definition, but with different type of double, right? Double, then sum, and then again return a plus b. One thing that you can observe here is the definition of the function return a plus b is same in all the three cases. The only difference is the type of the function. The type of the parameters and the return type that we are using depends upon the problem statement. Now, can we have some mechanism to combine all these three functions into one, and then on the compile time or maybe on the run time we are able to calculate that what is the type which is passed to the function, and based on that type we can implement the definition. Well, that was the reason how templates were created. So now what we will do, we will write a generic function. This is called generic programming. We will write a generic function. Let's say I am saying that the return type of the function is t. I don't know right now what is this t. It can be integer, it can be float, it can be double, it can be anything. Now I am saying create a function of return type t with name sum and parameters a and b, and the type of the parameter a and b is also t. That means I don't know the type of the parameters also right now. And then return a plus b. This is called a generic function because it is not specific to the data type. It is not specific to integer. It is not specific to float, double, or any other data type, right? Now, to create this generic function, we have to write this line template to say that this is a template function. Template, and then the class we are using in this template. So it is saying that this is a template function which is based on this particular class. Now what will happen if I call this function with 1 and 2? Now I know that the type of 1 is int and the type of 2 is also int. Now what will happen? We are saying that the type of this t is actually int, right? So change the value of t everywhere in the function where it is written to int. Now what will happen? We will mark a cross in t and we will write int. We will mark a cross on t, we will write int. So it will become exactly the function definition that we wanted. So this was the problem statement of why we wanted to introduce templates in C++ and how they are implemented. So this is basically the implementation of how we create a generic function, or we can similarly create a generic class also. So let's try to implement it in a compiler so that we can have a better understanding. Okay, so this is our main code, and let's write the same function that we have created before, the sum function. So what we will do, we will write template class t, and let's say now I want to add two numbers, and that two numbers can have different data types. So that is why I want two different type of template classes, template t and then x.
Now I will say that return the type t with the function name is sum, the first variable, and the second variable is of type x. Okay, so both can be different, and then return a plus b. Now I want to call this function cout sum with two variables. The first variable is 1.2 and the second variable is 3. Now what will happen, as we know that 1.2 is of type float, so that means it is the first argument. That means our first class, this t class, is of type float and the second class is of type int. Now the function definition will become, let's have it in the comment. So it will change to float, then sum. The first parameter is of float a, and then int b, and then return a plus b. So this is the function definition जो compile time पे use हो रही है, right? Because हमने क्या किया, हमने template functions use करे. So let's try to run this function now. Okay, and the output should be 4.2. As you can see, the output is 4.2. Now what will happen अगर मैं यहाँ पे t की जगह x use करूँ? That means यहाँ पे जो function definition use होगी, that will be of return type int. तो इससे क्या होगा? First we will add these two numbers, but as the return type is of int, तो इस 4.2 का round value हमारे पास आएगा, जो इसका integer value है, that is 4. So let's try to run it also. As you can see, the answer is 4 now. So this is basically why templates were introduced and how we can use it. Now again, to define a class, we can use a template. तो वहीं से STL का starting होती है कि STL कैसे बने हुए हैं. Okay, so let's try to create our own template class. Let's say this is of type. Now I want to create a class. Let's say myArray. Okay, and in this, I am saying that there is a pointer and there is a size of type int, and in the constructor, this is the constructor. So my array, I am passing my array. I am passing an array to initialize my variable of type t and then size. So let's say size is s. Now in the constructor definition, what I'm doing is I'm initializing this pointer variable. As this is dynamic memory allocation, so we will use new operator. So we will say array is equal to new array of type t, because right now we are not sure about the type of t. So we will say that we want a array of size s and type t, right? And in the variable size, I will say s. Now to initialize it, I will just have a loop s I plus plus, and then I will say array of I is equal to, okay, यहाँ पे थोड़ा confusion हो जाएगा. So let's name it a, and here also let's name it a. Now let's have another function also to print the value of our created object. So let's name it print. It will not take any argument and it will simply see out the value of all the variables that are present in our array. So till the size and then I plus plus and then see out array of I, right? So this is very basic implementation. I am trying to show you how the template classes were defined. So this is my print function, this is my constructor, and let's end our class, and now let's create the object of this class. Now in the template classes or in the template function, we have to pass one argument to define the type of the class that we want to generate. So हम कैसे इसे create करते हैं? First I will write, I want to create the object of my array class and I'm passing the type int. That means
यहाँ पे जो t की वैल्यू है आई एम पासिंग इट एज इंट. सो दैट इज वाई आपने कई बार देखा होगा हम वेक्टर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, वेक्टर ऑफ टाइप इंट और वेक्टर ऑफ टाइप फ्लोट. सो इट इज बेसिकली वी आर पासिंग दिस पैरामीटर टू द टेम्पलेट सो दैट हम ठीक से जो अपनी क्लास है उसे जनरेट कर पाए जो हमें एक्चुअल में चाहिए. तो हमने यहाँ पे इंट पास कर दिया. दैट मीन्स यहाँ जहां जहां पे t लिखा हुआ है वी आर रिप्लेसिंग इट विथ इंट. ऑल्सो ये हमारे मैक्रोज की तरह वर्क करते हैं. दैट मीन्स मैक्रोज में क्या होता है, कंपाइलेशन से पहले ही जहां जहां मैक्रोज की डेफिनेशन यूज होनी है वहां वहां वो कोड को रिप्लेस कर देता है एंड उसके बाद फिर हमारा कंपाइलेशन स्टार्ट होता है. सिमिलरली टेम्पलेट्स में भी क्या होगा, जहां जहां पे टी लिखा हुआ है वहां पे हम इंट को रिप्लेस कर देंगे बिफोर कंपाइलेशन. एंड वंस कंपाइलेशन स्टार्ट ये बेसिक किसी भी क्लास की तरह यूज होगा. जैसे हम नॉर्मल क्लास डिफाइन करते हैं विद आर रियल डेटा टाइप्स, वैसे ही हम इसे कंपाइल करेंगे. नाउ ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है. अब हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें पास करनी थी. हमें एक एरे पास करना है ऑफ टाइप टी. इन आवर केस इट इज ऑफ टाइप इंट. सो लेट्स क्रिएट द एरे of type int of size, let's say 3, and we are initializing it with 1 2 3, and let's pass it in the object and iska size hoga 3. Now let's call the function print so that we can see if it is correctly initialized or not. So obj.print, and it will work. Now this is the way that you use all the, as you can see the answer is 1 2 3. So this shows that our template class is working fine, and you can change the variable also. For example, instead of an int you want to create an array of type float. So what will you do is you will simply change all the uh, you will simply change the type of your object here from int to float, and that's how you can do it. So now as you can see our array is of type float. So that's how this is the basic implementation जो सारे STLs के अंदर use की गई है. We use template classes and based on the parameter that is passed उसके हिसाब से जो हमारी क्लास है वो जनरेट होती है एंड वी कंपाइल इट एंड वी यूज ऑल इट्स फंक्शन. सो सिमिलरली जैसे यहाँ पे हमने ये प्रिंट फंक्शन यूज करा है तो एज यू हैव सीन कि ऐसे होता है. वेक्टर अगर हमारा v नाम का हमने एक वेक्टर डिफाइन करा है तो वी यूज पुश बैक बिकॉज जो ये v है इट इज नॉट जस्ट अ वेरिएबल, ये एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, वेरिएबल क्लास का वेक्टर क्लास का ये एक ऑब्जेक्ट है. तो दैट इज वाई वी यूज डॉट ऑपरेटर टू असेस ऑल दी फंक्शंस और ऑल दी मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास. तो ऐसे हम इसे यूज करते हैं. Now let's get back to all the STLs that are available in C++, all the sequence STLs that are available. काफी सारे टाइप्स के STLs होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एसोसिएटिव STLs, एसोसिएटिव कंटेनर्स, फॉर एग्जाम्पल मैप्स. बट अभी के लिए हम एरेज पर फोकस कर रहे हैं. So let's try to focus on all the sequence containers that are available. Sequence containers का मतलब होता है जितने भी कंटेनर्स है जिन्हें हम सीक्वेंशियली असेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एरे क्या है, एरे कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन है ऑफ सेम टाइप. राइट, यहाँ पे जैसे अगर आपने देखा तो जो टाइप होगा हमारे वेरिएबल्स का वो खाली फ्लोट हो सकता है एंड यहाँ पे जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो कंटिन्यूस होगा बिकॉज इन द क्लास वी आर यूजिंग array initialization and array is a continuous memory allocation. So sequence कंटेनर्स का मतलब यही होता है जब हम सीक्वेंस से किसी एलिमेंट्स को असेस करते हैं, किसी कंटेनर के एलिमेंट्स को असेस करते हैं तो दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सीक्वेंस कंटेनर. इट डज नॉट मीन कि हमेशा कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होना चाहिए. फॉर एग्जांपल लिस्ट भी हमारा सीक्वेंस कंटेनर्स में काउंट होता है बट उनका मेमोरी एलोकेशन कंटिन्यूस नहीं होता. राइट, दे आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग पॉइंटर्स. वो लिंक लिस्ट यूज करते हैं इंटरनली. सो बट उनका जो असेस करने का तरीका है, हाउ विल यू डू, सबसे पहले आपके पास इनिशियल पॉइंटर होगा, आपका हेड पॉइंटर होगा, हेड से आप नेक्स्ट पे जाओगे, नेक्स्ट के नेक्स्ट पे जाओगे, तो आप सीक्वेंस से असेस कर रहे हो. सो दैट इज व्हाई इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सीक्वेंस कंटेनर्स. Now let's see all the sequence containers we have in C++. So first we have the very basic container array. Array let's say A, and इसमें हम पास करते हैं इसका size. So this is int and इसका size हम साथ में पास करेंगे. Let's say 3 इसका size है. We are initializing it with 1 2
3। सो यहाँ पे STL को हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसके जितने भी फंक्शंस हैं उन्हें कैसे असेस कर सकते हैं। एज आई सेड, ए जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट है, राइट। से देयर सम टेम्पलेट क्लास ऑफ टाइप एरे एंड हम उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें अब क्या होगा, अगर आपको लेट्स से ए का साइज चेक करना है, तो व्हाट यू विल डू, ए डॉट साइज, एंड साथ साथ इसे प्रिंट करा लेते हैं, सी आउट, एंड लेट्स सी क्या आंसर आता है। सो एज यू कैन सी आंसर इज 3, क्योंकि हमने इनिशियलाइजेशन के टाइम पे 3 एलिमेंट्स डाले हैं एंड साइज भी यहाँ पे 3 मेंशन करा है। नाउ इफ यू वांट टू आइट्रेट ओवर दिस एरे, तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप लगाएंगे फ्रॉम आई इज इक्वल्स टू 0 टू आई इज इक्वल्स टू 3 और आई इज इक्वल्स टू ए डॉट साइज, एंड हम सारे के सारे एरेज के एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकते हैं। नाउ एरे के एलिमेंट को असेस करने का क्या तरीका है, फर्स्ट इज यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं एरेज में, वैसे आप कर सकते हो। लेट्स से अगर हमने ये करा, इट विल वर्क। अगर हम दूसरे तरीके देखें तो आप गेट को भी यूज कर सकते हो। गेट इज अगेन अ फंक्शन। सो इसमें क्या होता है, यू विल राइट द इंडेक्स हेयर एंड यू विल पास द एरे जिसके ऊपर आपको गेट करना है। तो इन आर केस द एरे नेम इज ए। तो इससे भी हमारा 0 एलिमेंट आ जाएगा। अगर आपको ये भी नहीं करना तो आप एट भी यूज कर सकते हो, तो ए डॉट एट 0। So this will also work. So in all the 3 cases हमारा आंसर आएगा 1. So let's try to run it. As you can see यहाँ पे हमारे आंसर आ गए 3। तो these are 3 ways जैसे आप एरे के STL के एलिमेंट्स को आप असेस कर सकते हो। अदरवाइज इसके अलावा काफी बाकी सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे अभी हमने साइज देखा था। देयर आर मेनी काइंड ऑफ फंक्शंस। लेट्स से अगर आपको स्वैप करना है दो दो वैल्यूज को आपस में, तो देयर इज अ स्वैप फंक्शन। अगर आपको एरे इनिशियलाइज नहीं करना बट आपको उसे किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट से फिल करना है, सो व्हाट यू विल डू इज यू विल कॉल द फिल फंक्शन। सो लेट्स से यहाँ पे अगर मैं फिल कर दूं इस एरे को विद वैल्यू 1, तो क्या होगा, जितनी भी हमने इसे साइज एलोकेट किया हुआ है उन सारे मेंबर्स पे 1 अपने आप आ जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू आइट्रेट ओवर द एरे। इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 3। अभी के लिए मुझे साइज पता है, अदरवाइज लेट्स यूज साइज ऑल्सो, एंड आई प्लस प्लस, एंड लेट्स सी आउट। सो नाउ यू कैन सी आंसर इज 111, और लेट्स से इसे चेंज कर देते हैं 2 पर। सो आंसर वुड बी 222 इन दिस केस। सो दिस इज फिल फंक्शन। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बट द ओनली डिसएडवांटेज अबाउट एरे एसटीएल इज क्यों क्यों हम इसे ज्यादा यूज नहीं करते, बिकॉज इट इज स्टैटिक इन नेचर। आपको पहले से ही एरे का साइज डिफाइन करना पड़ेगा एंड आप उसे चेंज नहीं कर सकते। सो द बेटर अल्टरनेटिव इज यूज वेक्टर्स। वेक्टर्स डायनेमिक एलोकेशन करता है, तो लेट्स ट्राई दैट ऑल्सो। सो इट इज एरे and let's comment it out, this implementation, and now let's see vectors. सो वेक्टर्स का भी जो मेन टाइप है वो तो हमारा एरे ही होता है। इट इज अगेन सिक्वेंशियल इन इन मेमोरी एलोकेशन। बट इसमें क्या होगा, हमारे पास साइज के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। मतलब देयर इज अ मैक्सिमम कैपेसिटी जितना बड़ा हम वेक्टर ले सकते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ हम कितने एलिमेंट्स उसमें डालेंगे वो डायनेमिकली चेंज होता रहता है। एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो इसे भी डिक्लेयर करने का तो सिमिलर तरीका है। इट अगेन यूज टेम्पलेट क्लासेस। तो यहाँ पे हम टेम्पलेट को इन पास कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेक्टर ऑफ टाइप इंट, राइट। तो यहाँ पे हमने लिखा v एंड देन वी कैन यूज पुश बैक फंक्शन। सो पुश बैक का मतलब क्या होता है, लेट्स से आई एम पुश बैक एंड आई एम पुशिंग 2। लेट्स से इसमें क्या होगा, अभी के लिए मेरे पास 2 है मेरे वेक्टर के अंदर। अगर मैं दोबारा पुश बैक करूंगी तो इंस्टेड ऑफ फ्रंट ये बैक में पुश करेगा, यहाँ पे पुश करेगा। सो लेट्स हैव अनदर फंक्शन पुश बैक 3, लेट्स से। नाउ यहाँ पे हम मुझे जो आपको शो करना है दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन साइज एंड कैपेसिटी। साइज का मतलब क्या होता है, आपके वेक्टर में अभी करंटली कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, एंड कैपेसिटी इज आपको करंटली वेक्टर में कितनी एलिमेंट्स ऐड करने के लिए अलाउ किया गया है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे अभी हम ट्राई करते हैं सी आउट v डॉट साइज। सो यहाँ पे हमारा अभी होना चाहिए 0, राइट। अभी तक हमने कोई एलिमेंट पुश नहीं किया है इस स्टेज तक। एंड यहाँ पे कैपेसिटी को सी आउट करते हैं, सी ए पी कैपेसिटी
and then have enter, एंड देन जब हमने पहला एलिमेंट पुश कर दिया उसके बाद अगेन सी आउट करवाते हैं, एंड देन हमने जब सेकेंड एलिमेंट पुश किया उसके बाद दोबारा सी आउट कराते हैं, एंड लेट्स सी क्या आंसर आएगा. सो एज यू कैन सी इन द फर्स्ट एग्जाम्पल इट इज सेइंग 0 0. अभी हमारे वेक्टर में कोई भी एलिमेंट नहीं था तो उसका साइज भी 0 है, कैपेसिटी भी 0 है, राइट. दैट इज ट्रू. नाउ जब हमने फर्स्ट एलिमेंट पुश किया उसका मतलब क्या हुआ, साइज हमारा 1 हो गया, कैपेसिटी इज ऑल्सो 1. दैट मीन्स अब हमारे पास एक ही एलिमेंट की जगह थी जो हम फिल कर चुके हैं, राइट. जैसे ही हम 3 को पुश करने का ट्राई करेंगे इट विल चेक क्या मेरे पास कैपेसिटी अवेलेबल है अभी. इट विल से नो, क्योंकि मेरे पास कैपेसिटी 1 थी एंड वो ऑलरेडी फिल हो चुकी है. तो ये क्या करेगा, 1 का डबल कर देगा. तो 1 का डबल क्या था, 2. कैपेसिटी हो गई 2 एंड हमारा साइज भी हो गया 2, क्योंकि हम 2 एलिमेंट्स पुश कर चुके हैं, 2 एंड 3. नाउ लेट्स ट्राई इट अगेन, एक और एलिमेंट पुश करने का ट्राई करते हैं. लेट्स ट्राई टू पुश 4 नाउ एंड लेट्स सी अब क्या आंसर आता है. सो इन दैट केस एज यू कैन सी हमारी जो कैपेसिटी है वो 4 हो गई है एंड जो साइज है वो हमारा 3 है. दैट मीन साइज और कैपेसिटी डिफरेंट होते हैं. इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी इज मोर ऑफ कि आपके पास कितना अवेलेबल स्पेस है अभी एलिमेंट्स को डालने के लिए, एरे में कितना स्पेस अवेलेबल है, एंड साइज शोज कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है अभी आपके एरे के अंदर. सो जैसे ही हमने रिक्वेस्ट किया कि मुझे 4 पुश करना है, इट विल चेक क्या मेरे पास एरे के अंदर अभी स्पेस अवेलेबल है. इट विल से नो, क्योंकि मेरे पास 2 ही थी कैपेसिटी एंड मैं दोनों को फिल कर चुका हूँ. सो लेट्स ट्राई टू डबल द कैपेसिटी. सो 2 का डबल हो गया 4, सो कैपेसिटी विल बिकम 4. नाउ अगर मैं और पुश करने का ट्राई करूंगी, अगर मैं एक और एलिमेंट पुश करूंगी, कैपेसिटी विल रिमेन 4, क्योंकि अभी मेरे पास है और स्पेस एलिमेंट्स डालने का, एंड द साइज विल ऑल्सो बिकम 4. सो ऐसे करके कैपेसिटी और साइज डिटरमाइन होता है एंड दैट्स हाउ दे आर डिफरेंट. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू शेयर इज अबाउट आइट्रेटर्स. आइट्रेटर्स क्या होते हैं, आपके पास ये जो कंटेनर है, अगर आपको इन एलिमेंट्स के ऊपर आइट्रेट करना है, दैट मीन्स अगर आपको इन एलिमेंट्स को असेस करना है देन यू कैन यूज आइट्रेटर्स. आइट्रेटर्स आर बेसिकली पॉइंटर्स जो इन कंटेनर्स के एलिमेंट्स को पॉइंट करेंगे. तो उन्हें हम कैसे यूज कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन अ पॉइंटर वेरिएबल. अब उसे डिफाइन करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप उसका टाइप मेंशन करोगे, राइट. किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले उसका टाइप मेंशन करते हैं. सो यू विल से कि हमें एक आइट्रेटर चाहिए ऑफ दिस टाइप, एंड एज इट इज एन आइट्रेटर, सो उसका हम लिखेंगे कि हम एक आइट्रेटर रिक्वेस्ट कर रहे हैं एंड उसका नाम लेट्स से ITR है. नाउ ये तो हो गया डिक्लेरेशन. अब हमें इसे इनिशियलाइज करना है. लेट्स से मुझे इसे इनिशियलाइज करना है फर्स्ट वैल्यू से, जो मेरा इस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग एड्रेस है, वहां से मुझे इसे इनिशियलाइज करना है. तो मैं कैसे करूंगी, आई विल राइट ITR इज इक्वल्स टू v डॉट बिगिन. तो बिगिन जो हमारा इनिशियल पॉइंटर था, इनिशियल आइट्रेटर था, वो रिटर्न कर देगा. सिमिलरली अगर आपको एंड का आइट्रेटर चाहिए, सो यू कैन रिक्वेस्ट फॉर v डॉट एंड. So let's try to see out this vector using iterators. I will run a for loop on the iterator ITR, and I will say start it with begin. और मुझे इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऊपर कर चुकी हूँ. I will directly say कब तक इसे रन करो, जब तक मेरा ITR एंड के इक्वल ना हो जाए. दैट मीन्स एंड पॉइंटर के इक्वल ना हो जाए, तब तक मुझे ये लूप रन करना है, राइट. एंड टिल देन आइट्रेटर को प्लस प्लस करते रहो. सिमिलरली जैसे हम लूप लगाते थे i इज टू 0 टू साइज, वैसे ही हम आइट्रेटर्स को यूज करेंगे. जस्ट माइनर डिफरेंसेस. अब आपको आइटम्स असेस करने के लिए इस आइट्रेटर को डी रेफर करना होगा, बिकॉज ये एक पॉइंटर है तो हमें इसे डी रेफर करके उस पर्टिकुलर एलिमेंट को असेस करना पड़ेगा. सो दैट्स हाउ यू कैन डी रेफर इट, एंड लेट्स ट्राई टू रन इट. सो एज यू कैन सी यहाँ पे आ गया है हमारा 2 3 4, जो हमने एरेज जो हमने अपने वेक्टर के अंदर एलिमेंट्स डाले थे वो सारे हमारे आइट्रेट हो गए हैं, right. So this is about how we can use iterators to loop over the elements of our vector. Other functions that we have learned about is v dot begin, then v dot end, then v dot pushback, v dot size, v dot capacity. So there are a lot of functions like this, and there are algorithms also. So for example, now let's say
एक और एलिमेंट पुश करते हैं, एलिमेंट हमारे एरे में v डॉट पुश 0. नाउ आई वांट टू सॉर्ट दिस एरे, तो मैं क्या करूंगी, आई विल सिंपली कॉल दिस फंक्शन सॉर्ट. इसमें मैं आइट्रेटर्स पास कर दूंगी कि मुझे कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है. तो अभी के लिए लेट्स से मुझे स्टार्टिंग से एंड तक के सारे एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है. सो आई विल पास द आइट्रेटर वैल्यू आई डॉट बिगिन एंड एंड. एंड नाउ एक लूप रन करते हैं हम इसके बाद. ओके, एंड उससे पहले लेट्स हैव एंटर. नाउ एज यू कैन सी, पहले हमारा जो एरे था दैट वाज 2340 एंड सॉर्ट के बाद हमारा जो एरे था वो हो गया 02234. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एसटीएल, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी प्री डिफाइंड implementations होती है. फॉर एग्जाम्पल सॉर्टिंग की implementation है, देन इफ यू वांट टू फाइंड दी अपर बाउंड और लोअर बाउंड ऑफ एनी वैल्यू, तो उसके लिए implementations अवेलेबल हैं. सो दैट इज व्हाई एसटीएल इज प्रेफर्ड. So these are all the functions that we have learned so far vector के लिए, and there are other STLs also in sequence containers. So for example we have list जो internally doubly linked list को use करता है, linked list. Then we have deck which is doubly ended queue जो internally double ended queue को use करता है, double ended queue, which is basically कि आप फ्रंट से एंड बैक से पुश और पॉप कर सकते हो, राइट. क्यू इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट मीन्स आप पीछे से पुश करोगे एंड आगे से पॉप करोगे, राइट. सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सो डब्ल्यू एंडेड क्यू में क्या होगा, यू आर लाइक कि आपने दो क्यूज को एक साथ लेके आ गए. अब क्या होगा, आप इस साइड से भी पुश एंड पॉप कर सकते हो, इस साइड से भी पुश एंड पॉप कर सकते हो. सो दैट इज बेसिकली डबल एंडेड क्यू, जिसे हम डेक बोलते हैं. इसका भी एसटीएल C++ में अवेलेबल है. देन द अदर थिंग इज फॉरवर्ड लिस्ट. ये काफी कम यूज होता है बिकॉज इसका अल्टरनेटिव हमारे पास लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है. लिस्ट इज डबली लिंक लिस्ट एंड फॉरवर्ड लिस्ट का मतलब होगा सिंगल लिंक लिस्ट. सो दैट्स इट फॉर टुडेज ट्यूटोरियल. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच.